مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹا دی جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب اللہ چاہتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے ہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر وہ ایمان کی کر لیں تو دونوں کو پا لیں گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کسی کی چاہت نہ ہو۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا اللہ ضرور جانتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا
कभी सुकून में नहीं रह सकता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी में 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, और उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। उन लोगों पर हमेशा एतबार करो जो तुम्हारी यह 3 बातें भांप सके: तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। बेहयाई से बचो। बेहयाई शैतान का रास्ता है, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वह किसी के दिल और दिमाग से निकल जाता है। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक है, बर्ताव है, मेल जोल है और सिला रहमी है और भाईचारा है, न कि उसका ज़ाहिरी शक्ल व सूरत। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलटकर ज़रूर आता है। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी धागे की तरह होती है। जब तक ठीक रहे साथ रहते हैं, और जरा सा उलझे तो सुलझाने के बजाय तोड़ देते हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से महंगा है, मगर कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आँख से न निकले। पसंद उसको न करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। हिफाजत करने वाला तलाश करो, हुस्न देख कर तारीफ करने वाला नहीं। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वह अपनी औलाद की खातिर ऐसे खाविंद के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो न उसकी इज्जत करता है और ना ही उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। औरत का घर बनता तो उसकी नसीब से ही है, मगर बसता उसकी बर्दाश्त से है। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, नीयत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता है, ना ही किसी की कदमों में और ना किसी की नज़रों से। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने सजदे जेर हो जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में थाम लेता है। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाएगा। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मनाना, और फिर मन ऐसा हो जाता है कि बात करे तो भी ठीक और न करे तो भी ठीक। तुम अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो ना ही किसी से उम्मीद रखो और ना ही किसी से शिकवा करो। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ न हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप न हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। दुआएं तो पत्थरों का भी सीना चीरने की ताकत रखती हैं, फिर आप कैसे अल्लाह से नाउम्मीद हो सकते हो। परेशान रहना छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो। ज़रा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रज़ा वही हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो। कबूलियत का मंज़र करीब है, तुम शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो।
जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे तो फिर तुम्हारी चाहत के लिए वह कुन फरमा देगा। परेशान न हुआ करो, अल्लाह इंतज़ार के जरिए अपने बंदों को आजमाता है और उनकी दुआओं पर कुन फरमाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन अफसोस हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। याद रखें, दूसरों को तकलीफ़ देकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जिस चीज़ की तड़प तुम्हें सजदे के करीब ले आए, वह चीज़ अल्लाह भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगा। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते हैं, उसे यह खबर ही नहीं होती कि उसके रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। वह आजमाता है उसी चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। देखने में तो सब खुश नज़र आते हैं, पर दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। याद रखें, आपकी बुराई हमेशा वही शख्स करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, उसी तरह अगर जिंदों को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखना, इसे ही ईमान कहते हैं। जो लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर उन्हें कभी अपने नसीब पर रोना नहीं पड़ता है। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर लो। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा।